Okay, I am taking your fourth unit, which is methods and approaches of teaching, and I think first lecture हो चुका है regarding some viewpoint regarding methods and approach. So I will directly start with the methods of teaching. Let's just refresh up. Okay, what are the what is methods of teaching? What do you understand by methods? The way of teaching. Okay, it is way of teaching, or it is a way of teaching. It is a style of presenting content in the classroom. Okay. Planning instructions in classroom. Yes, very good. I'm sorry, मैं chat box के message I can't read right now because whenever I'm presenting screen ना तो मुझे दिखेंगे नहीं. So I would like to And prefer कि तुम लोग बोल दो. हाँ. definite sequence of proving Yes, learning very good. experiences. Definite sequence, very good. Or Ma'am, I was saying the process through which the teaching takes place. sorry, yes. फिर से बोलना जरा. Ma'am, the process through which Okay, teaching. okay, okay. The process by which teaching is happening. Okay, then Step-by-step guideline. okay. कहीं ना कहीं there are some set of instruction which our teacher is planning before giving every lesson, right? So it is a basically, and teacher is also planning the method, the way of teaching कि उस class में वो basically कौन सी way of teaching, कौन सी style of teaching से पढ़ाएगा, ठीक है? And it well methods जो भी है वो vary कर सकते हैं same content के लिए भी एंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाना है पोल्यूशन, ठीक है? मे बी बिफोर, अगर प्रीवियसली बिफोर कोविड-19 मैं इसको बाहर फील्ड ट्रिप पे ले जाके पढ़ा सकती थी. दैट कुड बी माय मेथड ऑफ टीचिंग. लाइक मैं फील्ड ट्रिप पे ले जाके बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड दे सकती थी, उनको खुद से लर्न करने के लिए बोल सकती थी, डिस्कवरी मेथड से लर्न करवा सकती थी. बट सिंस इट इज कोविड, मुझे सिचुएशन के बेस्ड अपने मेथड को चूज करना पड़ेगा. दैट रादर गोइंग आउटसाइड आई हैव टू चूज लाइक लेक्चर मेथड फॉर द that particular same chapter. So according to situation, even according to interest, abilities and experiences, I can change, I can vary my methods of teaching. For example, previously मैंने उसी chapter को उस method से पढ़ाया था तो student didn't enjoy, so I can change my method of teaching. Even interest of student, that ability of student also matters. So all these kind of things which are matters where I have to change my method of teaching regularly, even simultaneous. मतलब कि मुझे time by time dynamically I have to change my teaching method. अगर if I am seeing that lack of interest in student and अगर मेरा content भी अगर vary कर रहा है तो. So this is about the methods of teaching, and we are basically focus methods को दो broad aspect में we have like बांटा है. The first is teacher centered method and second is student centered method. So we'll talk about first teacher centered method and then we will talk about student centered method. So let's see what are aspects and characteristics are covered in teacher centered method, and then we'll talk about student centered method. So you can see that teacher, यहाँ पे teacher को center में रखा है. This is teacher centered method. So teacher will be take the central position in the classroom. Teacher plays central Ma'am, position. Yes. sorry to interrupt, ma'am. Are you sharing the screen, the slides? Yes, I'm sharing. I think Ma'am, अच्छा नहीं नहीं आ display आ रहा. रहा. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, I'm sharing again. No? Okay, chalo, thank you. Okay. Now is it visible? Yes, ma'am. Okay, fine. Since it's okay. Teacher is playing major role, so it is a totally, teacher is at the center position in the teacher centered method. Basically यहाँ पे focus होता है, it is focusing on telling, memorization and recalling the information, because teacher
जो भी होगा वो जनरली लेक्चर मेथड्स वाली चीजें होगी, यहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे टीचर विल स्पीक अप, टीचर विल टेल। तो जो भी टीचर बोलेगा दैट स्टूडेंट हैव टू मेमोराइज, एंड टीचर उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस फ्रेम करेगा, जैसे स्टूडेंट का रिकॉलिंग जो इंफॉर्मेशन है दैट पोर्शन विल बी कवर्ड. Student are actually playing the passive role here, and participation of student is there, but when the teacher will ask question, then only student are giving answer. Otherwise according to student, teacher नहीं पढ़ाता है, like flexibility नहीं दी जाती है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेस पे या फिर स्टूडेंट के नीड के बेस पे या रिक्वायरमेंट के बेस पे टीचर इज नॉट टीचिंग. यहाँ पे स्टूडेंट बता सकते हैं कि कुछ उनको डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट टीचर विल डिसाइड द अल्टीमेट थिंग. And it is very formalized, like it is generally happening in classroom situation, जहाँ पे प्रॉपर टेबल बेंच वगैरह है. यहाँ पे बाहर फील्ड ट्रिप में ले जाके नहीं पढ़ाया जाता. बेसिकली इट इज अकरिंग टोटली इन फॉर्मलाइज्ड कंडीशन. So teacher centered method में we are covering 3 methods: lecture methods, lecture cum demonstration method and historical method. तो यहाँ पे जनरली इंफॉर्मेशन गिविंग होती है टीचर के थ्रू, एंड स्टूडेंट जनरली सुनते हैं. ठीक है, and today we will finish lecture method. ठीक है, but before that let's just see what are the student centered method. इसको बोलते हैं pupil centered teaching also. तो basically teaching learning process in this method is based on needs, requirements, capabilities and interest of the student. जो भी टीचर पढ़ाएगा will be based on कि बच्चे का क्या नीड है, उनको रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी, एज अप्रोप्रिएट पढ़ाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट है कि नहीं, उस हिसाब से टीचर विल प्लान द लेसन एंड देन डिलीवर टू द स्टूडेंट. Purpose of student-centered method is to develop learner skills and abilities in independent learning and problem solving. यहाँ पे teacher will majorly play the role of facilitator. Student will given a freedom to learn by themselves. यहाँ पे totally student अपने से खुद से learn कर सके, that kind of freedom will given, and teacher will play the role of facilitator. जहाँ पे students को जरूरत पड़ेगी वहाँ पे student पूछ सकते हैं and can get advice, but टीचर उनको अपने से ज्यादा बढ़ चढ़ के एडवाइस नहीं देगा. इफ स्टूडेंट सीक नीड देन टीचर विल हेल्प. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, लाइक ऐसे पूरा फॉर्मलाइज तरीके से नहीं होगा. अगर ग्रुप में असाइनमेंट दे दिया है, प्रोजेक्ट दे दिया है, तो पूरा ऐसे क्लासरूम में ग्रुपिज्म वगैरह रहेगा. ऐसे फ्लेक्सिबल क्लासरूम क्लाइमेट रहता है यहाँ पे. एंड यस, इट इज साइकोलॉजिकली वेरी ओपन, लाइक माइंड बच्चा अपना अच्छे से यूज करता है, एंड द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स we have discussed earlier बहुत अच्छे से. जो भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड. एंड स्टूडेंट एंड टीचर जॉइंटली एक्सप्लोर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम rather than teacher telling the student about the solution of problem. यहाँ पे student, as I told you that teacher is playing the role of facilitator. अगर student seeks need then teacher will help. यहाँ पे both will like प्रॉब्लम कुछ भी है, जो भी उसका सोल्यूशन लाना है, फॉर दैट इफ स्टूडेंट विल मतलब जॉइंटली दे आर एक्सप्लोरिंग फॉर द ट्रूथ एंड सिचुएशन टू ओवरकम दैट सिचुएशन. ऐसा नहीं कि टीचर को ही इंटरेस्ट है और बताया जा रहा है. स्टूडेंट को टाइम टू टाइम दे आर फैसिलिटेटिंग. टीचर क्रिएट्स कंडीशन एंड मेक रिसोर्सेज अवेलेबल for student to learn by their own. Like teacher is totally प्लेइंग द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, एंड यहाँ पे उनको पूरा कंडीशन, जो भी अगर उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, तो टीचर विल मेक इट अवेलेबल एंड फैसिलिटेट द स्टूडेंट एंड देयर लर्निंग. So we will start with the teacher centered method, which is lecture method. Why lecture method is teacher centered method? Have you heard? You already have idea, because since you have studied your larger part of study from the higher standard. So generally higher standard may we have seen the lecture method. So why it is teacher centered method? Ma'am, because teachers are dominated there. Okay. Yes, teachers, the role of teacher is dominating in the lecture method. And
मैम जो भी बेसिकली टीचर लेक्चर सेंटर्ड में मेथड में टीचर इज हमने द वन डिस्कस हु किया विल ना। बी हाँ, स्पीकिंग। हाँ मैम। सॉरी। मैम लेक्चर मेथड में जनरली टीचर ही होंगे जो बोलते रहेंगे ओके, वैसा। ओके, इधर हाँ मैम। गुड। Ma'am, हाँ, students are at the receiving end. That's yes, students are receiving. Okay, they are passive. Okay, then जो भी हमने लेक्चर टीचर सेंटर्ड मेथड में डिस्कस किया, दैट कैन अप्लाई ऑन द लेक्चर मेथड बिकॉज इट इज वन ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड। तो वहां के कोई कैरेक्टरिस्टिक है दैट यू कैन टेल आल्सो। मैम एक जो आपने क्वेश्चंस का पूछा था वो वाला, मतलब जनरली टीचर जब सब कुछ डिस्कस ही करेंगे, बोल ही देंगे, तो जनरली यस, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम स्टूडेंट हाँ, साइड। ओके। तो कब से तुम लोगों को लेक्चर मेथड पढ़ाना शुरू किया था, स्कूल में या फिर कॉलेज में आके शुरू हुआ? मैम स्कूल में भी होता ही था। हाँ, उस यस, वक्त मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत कम होते थे, ओके। सो जनरली इट वाज मोर बेस्ड थोड़ा ऑफ मिक्स मिक्स लेक्चर। मेथड्स यूज होते थे स्कूल में, यस ओके। मैम। वैसे मैंने बोला कि जनरली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट क्या वो सर्व करते हैं टीचर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेथड्स कैन वेरी। लाइक स्कूल में ऐसा जरूरी नहीं हुआ कि हर लेक्चर प्रैक्टिकल मेथड से होगा। लाइक प्रैक्टिकली तुम लोग को बताया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। कभी कभी लेक्चर मेथड भी यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर और कंटेंट सीक्स दैट काइंड ऑफ मेथड, राइट? सो बेस्ड ऑन द कंटेंट और जो भी सिचुएशन है, कोई जितने भी मेथड्स हैं वो कहीं ना कहीं तुम लोगों ने सारे एक्सपीरियंस किए होंगे। एंड ऐसा नहीं कि कोई एक मेथड खराब है, लाइक लेक्चर मेथड बोरिंग है या फिर इट इज नॉट वर्थ इट, ऐसा कुछ नहीं है। सबके देर आर लेक्चर मेथड इज ऑल्सो हैविंग मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर अच्छे से ये सर्व किया जाए तो इट कैन बिकम अ गुड गुड मेथड, ठीक है? So this method is dominating method today because why it is dominating method, because every teacher is liking this method. Like student का पता नहीं, but every teacher is liking this method because larger part of content can be covered in shorter period of time, and टीचर को ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है बिकॉज टीचर को जस्ट बोलना होता है, इसमें जस्ट हैव टू डिलीवर द इंस्ट्रक्शंस जो उसने फ्रेम किए हैं वन बाय वन। एंड ना ही कोई प्रैक्टिकल के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट अवेलेबल करवाने हैं, या फिर कोई मेहनत नहीं करनी, जस्ट एक जगह पे बैठ के ये काम हो सकता है। सो एवरी टीचर इज लाइकिंग दिस मेथड। टीचर इज ओनली एक्टिव पार्टिसिपेंट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड। So this characteristic will come that it is on active participation is from the teacher side, ki teacher is only the person who is continuously speaking, and students are the passive listeners. Students are passive listeners, they are just listening, try to memorize the information given by the teacher, recall the previous knowledge and that kind of stuff. Like, so यहाँ पे this is definition I have given. The lecture method is an instructional procedure by which the lecturer seeks to create interest, to influence, stimulate or mold the opinion, to promote activity, to impart information or to develop critical thinking largely by the use of verbal message. यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, फ्रेम कर रहा है, इंस्ट्रक्शनल मैसेज फ्रेम कर रहा है इन वर्बल फॉर्म। एंड what kind of qualities wants need to develop in the student, like interest, influence, to stimulate them, उनका to prompt the activity। but ये सब चीजें होती नहीं है जनरली, because if the lecture is not delivering properly, इफेक्टिव वे में अगर लेक्चर को डिलीवर नहीं किया जाता है तो उसके बहुत सारे डिमेरिट्स आ जाते हैं। बट इफ द लेक्चर इज डिलीवर्ड इफेक्टिवली, अप्रोप्रिएटली अगर लेक्चर मेथड को यूज करते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। Teaching a lesson is in the form of speech or talk. This is the main characteristic of the lecture method. Okay, so here are the merits of lecture method. It is economical. Now, how it is economical? मैम बिकॉज Yes. डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं, सो जनरली मतलब Okay. इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट है, फिर इवन हाँ, टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है, वो सारा कम हो जाता है, ऐसा हो सकता okay. है।
वेरी ट्रू, यही है इसका मीनिंग कि इकोनॉमिकल है, बिकॉज देर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो वो कोई उसके लिए कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, सो इट इज वेरी इकोनॉमिकल, लाइक इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है, see it is saving. Second point is all like that, कि save time, it is saving time because larger content can be covered in very shorter period of time, है ना. It simplifies the work of teacher. How it is simplifying the work of teacher? मैम बिकॉज ज्यादातर वर्बल है, सो दैट इज हाउ नॉट मच वर्क नीड्स टू बी डन, मतलब और टीचिंग एड्स की भी यूज नहीं करना पड़ेगा, सो इस हिसाब से सिंपल हो जाएगा. Okay, yes, कि ज्यादा मैम ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन. कंटेंट कवर कर रहे हैं Yes, तो ये काम है. ओके, ज्यादा कंटेंट कवर करना है. ज्यादा कंटेंट कवर कर रहे हैं कम टाइम में तो टीचर के एफर्ट कम लगे. यस, यस, तो यहाँ पे भी टीचर का वर्क सिंप्लीफाई हो रहा है. ओके, व्हाट्स योर टॉपिक? अभी कौन बोल रहा है फ्रॉम गर्ल साइड? कौन बोल रहा था? मैम कृति हियर. ओके, कृति. कृति, व्हाट इज योर टॉपिक जो अभी तुमने लिया था उसके लिए? ये जो चैप्टर्स लिए है ना, उसमें तुम्हारा हाँ टॉपिक मैम. कौन सा है? मैम मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, फ्रेंड एंड फोर. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड अंकित, तुम्हारा टॉपिक कौन सा है? तो अंकित ही बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था दूसरा? आदर्श. आदर्श. ओके, आदर्श. आदर्श, तुम्हारा टॉपिक कौन सा है? फ्रिक्शन चैप्टर 8, ओके, क्लास 8 चैप्टर 12. ओके, फाइन. सो तुम फ्रिक्शन को कौन सा, मतलब कौन सा टीचिंग मेथड से पढ़ाना चाहते हो? मैम इफ यू शुरुआत यू तो हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन से करनी पड़ेगी. ओके, यू विल स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन. ओके. एंड कृति, तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहाँ से स्टार्ट करोगी? मैम शुरुआत में एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को पूछ सकते हैं कि आपने ओके, मतलब कोई, हाँ मैम, बिगड़ी हुई आइटम या ऐसा कुछ देखा है तो या फिर आलगे वगैरह जो ग्रीन कलर का होता है रेनी सीजन में, तो ओके, ऐसे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं, ओके. कोई मतलब है माइक्रोस्कोप दूसरा? के अंदर हाँ, वैसे. ओके. किसी और को कोई टॉपिक शेयर करना है? पीनल, विच टॉपिक यू आर टेकिंग? पीनल, आर यू देयर? और कौन कौन है? दीपा. दीपा, विच टॉपिक यू आर टेकिंग? यस, Ma'am, my हर्षित. topic is sound. ओके, ओके, दीपा, अंकित और हर्षित. पहले मैं दीपा को पूछती हूँ. दीपा, हाउ यू विल टीच योर टॉपिक? साउंड कैसे Uh, पढ़ाओगी? First, we can give examples from the day-to-day their यस, experiences that. जैसे ओके, कुछ जैसे साउंड के लिए कुछ बस सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करना है? नहीं, मैम पहले टॉपिक मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साउंड ओके, आप जो सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं. वेरी गुड. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल, कि एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जरूरत नहीं कि एवरी टाइम हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से शुरुआत कर दे, ठीक है. कभी कभी वी हैव टू कुछ, बिकॉज सर्टेन टॉपिक्स आर लाइक दैट, कि कुछ टॉपिक में डेमोन्स्ट्रेशन बैठेगा, बट देयर आर सम टॉपिक जहाँ पे यू हैव टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स, है ना. तो वहां पे यू हैव टू स्टार्ट योर लेक्चर विद द lecture, your class with the lecture method, right? तो lecture method कभी मतलब कि there are so many merits, like one is like if you want to start something, किसी chapter को start करना है, introduce करना है, तो वहां पे you can start with the lecture method. Good. And Ankit, what is your topic? You was about to saying something. Yes, ma'am. My topic is coal and petroleum. Okay, तो how you will take your lecture, I mean class में क्या method use करोगे? मैम पहले तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि व्हीकल्स को चलने के लिए क्या चाहिए, वो सब कहाँ से आता है. देन आफ्टर उनको बताना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, कौन से है जो मतलब थोड़े टाइम में खत्म होने वाले हैं. अच्छा, गुड. एंड कोई और बोल रहा था अपना क्लास के बारे में, चैप्टर के बारे में? मैम यस. मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया चैप्टर. मैम कैसे करेंगे? ओके, यू हैवंट डिसाइड, क्योंकि लिखा तो उसमें लिखा नहीं था चैट बॉक्स में उस दिन? नो मैम, मैं उस दिन एब्सेंट था.
ओके, तो मैसेज मी टुडे, ठीक है, जो भी चैप्टर तुम ले रहे हो मैसेज कर देना। ओके हेलो एंड मैम, यस, वो जो दूसरे मेथड का नहीं, मैम मैम से पूछ के आपने पेडागोजी बुक। वाला। हाँ, हाँ इट्स हाँ। ओके, अभी ले देखो, नहीं लो तो अच्छा है, बट ले लिया है तो इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बट अभी हम कह नहीं रहे कि चेंज कर ही दो, ठीक है। और हम चेंज करें और वो चैप्टर अगर किसी से मतलब किसी ने ले लिया हाँ, हो तो वो पहले फिर तो से हम। चेंज कर देना। मैं एक्चुअली फाइनल डॉक्यूमेंट कल तक तुम लोग को भेज दूंगी, जिसके डबल हो जाएंगे हाँ उसमें मैं मैम। रेड मार्क लिख दूंगी, तो वहां पे थोड़ा देख लेना, चेंज हाँ कर दो मैम, तो वो अच्छा है, ठीक चलेगा। है। ओके Okay. It is useful to impart factual information, life histories and etc. For example, कोई भी मुझे facts की information देनी है, histories के बारे में बताना है। For example, मैंने उस दिन lecture start किया था इजिप्ट के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, वहाँ के लोगों को scientific aptitude कैसे आया, कहाँ कैसे उन्होंने डेवलप किया है, वहाँ पे किस तरह से उन्होंने साइंस को यूज किया है, इस तरह से मैं पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह बता रही हूँ। इफ आई वांट टू start my class with that, so I can use lecture method, वहां पे lecture method best रहेगा। I cannot demonstrate each and every situation, है ना। तो it is good to serve this kind of information by the lecture method. It can cover larger number of student, obviously जो instruments या फिर कुछ भी applications है उनको use करना है हमें, तो उसके लिए अभी 200 स्टूडेंट है तो हमारे पास 200 इंस्ट्रूमेंट्स तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो लाइक लेक्चर मेथड है तो एक एक टाइम पे मैं 200 को कवर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे वही चीज समझानी है किसी और मेथड से तो मुझे एरिया भी ज्यादा चाहिए, तो फिर आई हैव टू कट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, आई हैव टू टेक डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस फॉर द सेम कंटेंट, ठीक है। It is easy for students to listen to what the teacher says without taking pains of experimentation and observation. It is good for teacher के लिए तो अच्छा ही है, but it is good for students also कि उनको भी कोई झंझट नहीं करना है। They just have to listen on only, कि उनको listen करना है, बाकी जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। इट इज समटाइम गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। The lecture help to channelize the thinking of student in given direction. Like if this teacher frame the instructions in proper way, तो पूरी training के through student की thought process को भी teacher channelize कर सकता है, ठीक है। Good lecture can motivate, inspire and instigate a student toward creative thinking. Like I said कि जो भी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस चैनलाइज किए हैं, तो अगर वो अच्छे से डिलीवर करते जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट कैन गेट मोटिवेट फॉर पर्टिकुलर टाइप टॉपिक, या फिर उसको इंस्पायर इंस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड। इट इज एसेंशियल टू यूज लेक्चर मेथड इन सर्टेन सिचुएशन। अभी लेक्चर मेथड बेसिकली ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट किस किस सिचुएशंस में आएगा, जैसे कि अभी बोला किसके टॉपिक, वो साउंड वाले टॉपिक को लेकर के, कि फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कभी कभी कोई ऐसे टॉपिक है तो उनको इंट्रोडक्शन चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें या हिस्ट्री के थ्रू कहीं कभी कभी इंफॉर्मेशन देना है, तो वहां पे वी कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक विद द लेक्चर मेथड। मे बी हाँ, इंट्रोडक्शन तो हो सकता है, बट समराइजेशन के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट कि अभी मुझे समरी देनी है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तो मैं फिर से पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके या फिर एक्टिविटी करके आई कैन नॉट शो, तो आई कैन सिंपली स्पीक आउट दैट ऑल थिंग्स जो भी मैंने पढ़ा है। तो समराइजेशन करने के लिए भी आई कैन यूज द लेक्चर मेथड। गिविंग इंस्ट्रक्शन बिफोर परफॉर्मिंग एनी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। अभी इवन इफ आई एम टीचिंग विद द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर मैं लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल वर्क करवा रही हूँ, तो बिफोर गेट इनटू द प्रैक्टिकल वर्क आई हैव टू गिव सर्टेन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो भी दैट कैन आल्सो डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ लेक्चर मेथड। एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट करवा तो दिया, बट स्टिल वो डिफिकल्ट था, बहुत सारे स्टेप्स थे उसमें, तो उनको ठीक से एक्सप्लेन करना है, तो फॉर दैट ऑल्सो आई कैन यूज द लेक्चर मेथड। सो दिस ऑल आर दी मेरिट्स। अभी दो मेरिट्स है जिसके अंदर जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स है, डिस्कवरीज है, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस है, दैट आई कैन टेल विद द हेल्प ऑफ लेक्चर मेथड, एंड साइंटिस्ट के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, ऑल दैट थिंग्स जो भी प्लान किए है, जो मुझे बहुत मतलब
लार्ज कंटेंट स्मॉल टाइम में मुझे डिलीवर करना है, फॉर दैट आई कैन यूज द लेक्चर मेथड। ठीक है, तो दिस ऑल आर द मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड एंड देयर आर सेवरल डीमेरिट्स ऑफ द लेक्चर मेथड, बिकॉज जनरली इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस कभी कभी नहीं दे पाता है टीचर, फॉर दैट सेक ऑल्सो, और मे बी ये पूरी तरह से अगर कभी कभी रोट लर्निंग भी हो जाती है, फिर पूरा टोटली बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन हो जाता है, तो कभी कभी इट इज नॉट इफेक्टिव। सो इट इज हैविंग सर्टेन बंच ऑफ एक्चुअली ज्यादा ही डिमेरिट्स है, क्योंकि ये वी कैन नॉट यूज लेक्चर मेथड फॉर द लोअर स्टैंडर्ड्स। इट इज हैविंग मेजर मेरिट्स फॉर द हायर स्टैंडर्ड्स, बट लोअर स्टैंडर्ड्स के लिए तो इसको पहले तो यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, डोंट मतलब एलिमिनेट ज्यादा से ज्यादा करो, लेक्चर मेथड्स को लोअर स्टैंडर्ड में तो यूज करना अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एंड इनकलकेटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड विच आर मेन एम ऑफ साइंस। क्योंकि बचपन में अगर सीधा बोलना लेक्चर देना शुरू कर दिया तो स्टूडेंट्स के अंदर कोई साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर कोई उस प्रकार से डेवलप होगा ही नहीं एप्टीट्यूड उनके अंदर, बिकॉज फॉर दैट उनको कुछ एक्टिविटीज करवाने पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा। तो लोअर स्टैंडर्ड्स के लिए तो बेसिकली वी हैव टू अवॉइड दिस मेथड। It is against the principle of learning by doing because no provision for the experimental work। यहाँ पे पूरी तरह से learning by doing है ही नहीं, क्योंकि learning by doing कब होगा जब it is one of the characteristic of student centered method, जहाँ पे student खुद learn करके सीखेगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म आएगी, वहां पे लर्निंग बाय डूइंग होगी। तो यहाँ पे इन लेक्चर मेथड ये पूरा है प्रिंसिपल ही अगेंस्ट है लर्निंग बाय डूइंग के। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए देयर इज नो प्रोविजन। टीचर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट आर पैसिव पार्टिसिपेंट, सो इट इज अनसाइकोलॉजिकल। वो साइकोलॉजिकल था कौन सा, प्यूपिल सेंटर्ड, जो जिसके हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे, तो बेसिकली ये उसका ऑपोजिट ही होगा, जो क्योंकि दिस इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, तो इट इज हैविंग डीमेरिट ऑफ लाइक इट इज अनसाइकोलॉजिकल, जहाँ पे बच्चे अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज वेरी पैसिव, जहाँ पे टीचर बोल रहे हैं एंड स्टूडेंट का कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको आंसर देना है, तो वहां पे दे आर नॉट स्टॉप यूजिंग देयर माइंड्स एंड साइकोलॉजिकल जो भी कंस्ट्रक्ट्स है वो भी वहां पे डेवलप होना स्टॉप हो जाते हैं, because a teacher is having active role and student are the passive. Students interest, intelligence, abilities are not taken into the consideration। जो भी psychological constructs है they all are like, क्योंकि student passive है तो उनके psychological construct भी passive ही होंगे। ठीक है, तो they are all not taken into the consideration। less attentive for the student because अटेंटिवनेस ही नहीं होगी स्टूडेंट में, क्योंकि अगर टीचर बोल रहा है एंड स्टूडेंट सुन रहे हैं और उनको कोई फियर नहीं है कि दे हैव टू आंसर और नॉट, तो वो कभी कभी में अपनी अलग ही दुनिया में चले जाएंगे एंड सुनेंगे नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो बोरिंग कभी कभी लग सकता है, तो इट इज लेस अटेंटिवनेस फॉर द स्टूडेंट। दिस मेथड कैन बी मिसयूज्ड। ऑब्वियसली ये मेथड काफी मिसयूज किया जाता है कि कभी कभी जो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिकल करके पढ़ाना चाहिए वो वाले चैप्टर्स भी कभी कभी लेक्चर मेथड से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, नो रेमीडियल हेल्प फॉर द स्लो लर्नर्स, बिकॉज टीचर ज्यादा बीच में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन कौन स्लो लर्नर्स है, कि फीडबैक मिलेगा नहीं अच्छे से, तो देयर इज नो रेमीडियल हेल्प फॉर द स्लो learners। A poorly planned and poorly delivered lecture fails to motivate the student। Basically lecture method की definition में था to motivate the student, but अगर poorly planned है lecture, अच्छे से प्लान नहीं है, अच्छे से डिलीवर नहीं किया है, इफेक्टिवनेस इन स्पीकिंग नहीं है, तो it will definitely fail to motivate the students। Okay, finally, okay, come to the application। अब effectively how can we apply it? अगर हमें अप्लाई करना है effectively लेक्चर मेथड, तो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? where we will apply this? मैम जैसे स्पेस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो मतलब यूनिवर्स स्पेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जो कि हम नहीं कोई मतलब लेक्चर मेथड के अलावा और कोई स्कोप ही नहीं है उसे एक्सप्लेन करने का, वो क्वांटम वगैरह उसके। यस, वेरी गुड, कि हमें स्पेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने हैं, देन हिस्ट्रीज बतानी है, थियोरीज, फैक्ट्स बताने हैं, तो वहां पे वी डोंट हैव ऑप्शन कि हम वहां पे हमें लेक्चर मेथड ही यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। देन
और एग्जाम्पल दो, यू कैन, अभी तुम लोगों ने चैप्टर्स चूज कर लिया ना, तो तुम अपने चैप्टर का एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो कि मेरे चैप्टर में मैं ये पोर्शन आई कैन डिलीवर थ्रू द लेक्चर मेथड। मैम जैसे पीरियोडिक टेबल है मेरा यस, लेक्चर, तो हर एक एलिमेंट तो पॉसिबल नहीं है क्लासरूम में लाना, तो फिर वहाँ पे लेक्चर मेथड से ही उन्हें कब डिस्कवरी हुई, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ उससे डिलीवर करना पड़ेगा। यस, गुड। मैम और फिर जैसे मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, तो उनके यूजफुलनेस क्या है, वो हार्म कैसे करता है, तो वो मैं लेक्चर यस, मेथड से बता सकती हूँ। yes, that portion you can cover with the lecture method. Okay. बता, तो तुम्हारा पेडागोजी वाला पोर्शन भी सॉल्व हो जाएगा। और किसी को नहीं शेयर करना है? मैम फिर साइंस में काफी सारे लॉज आते हैं, यस, उनका काफी डेरिवेशंस भी आते हैं काफी में, ओके, तो वो सारे लेक्चर मेथड से हो सकता है। ओके। वंस एक बार डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए उसके बाद भी, या फिर हाँ, उसके वंस, पहले हाँ, भी? एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर दो, उसके बाद वो समझा सकते हो। हाँ, गुड। मैम हमें ऐसा होता था कि लैब में एंटर होने से पहले भी एक मैनुअल देते थे पढ़ने के लिए, जिसे हम जीएलपी बोलते थे, गुड यस। लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो स्टार्टिंग में उसे पढ़ के ही जाना पड़ता था, और वाइवा में ओके, भी उसके रिलेटेड पूछते थे। सो अच्छा, वो भी नेसेसरी है कि भाई पहले पढ़ेंगे फिर ही जाएंगे अंदर, तभी हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिकल को कैसे हैंडल ओके, करना है। गुड। कि प्रैक्टिकल्स को करने से पहले यू शुड हैव सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मे बी वो भी लेक्चर मेथड के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। गुड। और जो भी प्रैक्टिकल करवाए वो भी क्या होता है जनरली कि वो स्टेप बाय स्टेप कभी कभी भूल भी सकते हैं, तो उनको भी सीक्वेंस में अरेंज करके एक बार स्टूडेंट के दिमाग में डालना पड़ता है। फॉर दैट रीजन ऑल्सो लेक्चर मेथड यूज करनी चाहिए। ठीक है, ओके। और किसी का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक? मैम जैसे फ्रिक्शन के तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऐसे है कि उसको डेमोन्स्ट्रेशन पे ज्यादा सही रहेगा, लेकिन उसमें ओके, एक पार्ट आता है जब हमको ये बताना होता है कि जब दो सरफेसेस आपस में रगड़ खाती हैं तो उसका कारण क्या होता है, तो उसमें माइन्यूट पार्टिकल्स का जिक्र होता है। अब वो हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो वो हमें ओके, स्टूडेंट्स को लेक्चर के थ्रू इमेजिन करवा सकते ओके, गुड। और किसी को बताना है? हेलो मैम। हाँ, यस, मैम मेरा चैप्टर 10th है, क्लास 8th का, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में। मैम उसमें यस, हम ये बता सकते हैं कि हॉर्मोन्स रोल कैसे प्ले करता है एक चाइल्ड को एडल्ट में, क्या क्या चेंजेस कन्वर्ट आते हैं कर, बॉडी में, ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स कौन से रोल प्ले करते हैं, तो ये हम वाया लेक्चर मेथड से बता सकते हैं। ओके, दैट यू कैन टेल विद द लेक्चर मेथड। ओके, ओके, ऑल राइट। सो देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस जहाँ पे फर्स्टली तो ये है कि लोअर स्टैंडर्ड में डोंट गो फॉर द लेक्चर मेथड, गो हायर स्टैंडर्ड्स में यू कैन यूज द lecture methods firstly, then if you want to start some difficult topics, जैसे अभी कुछ फ्रिक्शन वाला बताया कि वो डिफिकल्ट है डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, तो दैट यू कैन वहां पे इमेजिन करवाने के लिए यू कैन यूज द लेक्चर मेथड। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट सा टॉपिक है तो वो स्टार्ट करने के लिए या फिर वो पढ़ाने के लिए, वो कवर करने के लिए यू कैन यूज द लेक्चर मेथड to explain certain theoretical points which cannot be demonstrated, जो भी demonstrate नहीं हो सकते, वो theoretical points है where you can use the lecture method. Then explaining the demonstration which has been done, जो भी practical हो गया है, demonstration तुमने करवा दिया है, उसको explain करने के लिए कि ये sequence में you have done this experiment, तो वो you can go with the lecture method to summarize, recapitulate and generalize scientific principles. ठीक है, all this हमने पहले भी डिस्कस किया कि टॉपिक को इनिशिएट करने के लिए भी you can use the lecture method in telling some relevant background material of the topic. कुछ टॉपिक के रिलेटेड भी कुछ तुम एक्स्ट्रा बात करना चाहते हो, ठीक है, that you can all
वहां पे भी तुम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्लड के बारे में बात करें तो वो कहाँ उसके रिगार्डिंग दूसरे तुमको इवेंट्स या स्टोरीज याद आ रहा है तो वो तुम यूज करके सीक्वेंस अपने बना सकते हो, ठीक है। So this was all about the lecture method, that merits, demerits, application we have seen. हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे दो जो भी हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड, एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में लेक्चर मेथड के मेरिट्स होंगे एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट्स होंगे, तो वो काफी बेटर मेथड है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो चलो देन let's just end the class. Thank you so much for joining everyone. Itna late, okay? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye everyone. I'm ending this Bye, meeting. Bye, ma'am. ma'am. Bye. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye.